Hello, everybody. Welcome to my channel Learn Literature with Bente. In today's class, we'll be discussing biography and works of Ben Jonson. Friends, हम सबको पता है कि in the history of English literature, Ben Jonson is considered one of the most renowned figure after Shakespeare. So, without any further delay, let's start. Ben Jonson was born on June 11, 1572 in London. He was a poet, essayist, and a playwright too. His father, a minister, died shortly before his birth. After some time, his mother remarried a bricklayer. जॉनसन अटेंडेड सेंट मार्टिन्स पैरिश स्कूल एंड वेस्टमिनिस्टर स्कूल और कहा जाता है कि यहाँ इनकी मुलाकात हुई थी एक शख्स नाम विलियम कैम्पटन नाम से। और ये जो शख्स हैं ये एक क्लासिकल स्कॉलर थे और इनका इन्फ्लुएंस बेन जॉनसन पे काफ़ी ज़्यादा रहा था। 1589 में he left Westminster School, worked briefly in his stepfather's trade as a bricklayer. इन्होंने कुछ टाइम मिलिट्री में भी काम किया था और उसके बाद फाइनली he becomes an actor and a playwright for Philip Henslow's theatre company. 1594 में इन्होंने शादी की एन लेविस से। उसके बाद इन्होंने एक एक्टर एंड प्लेराइट का जो है रोल वो प्ले किया। He became an actor and playwright with Lord Admiral's company in 1597. One most important fact about Ben Jonson is that he is considered the father of English classical comedies and a forerunner of what's known as city comedies. He wrote a satirical play, The Isle of Dogs, in 1597, for which he was imprisoned. ये प्ले जो है इन्होंने अकेले नहीं लिखा था बल्कि थॉमस नैश के साथ कोलैबोरेट करके लिखा था। और ये प्ले उस टाइम के जो रूलर्स हैं उनको कुछ पसंद नहीं आया और उन्होंने इन्हें इम्प्रिजन करवा दिया। 1598 में इन्होंने अपना फर्स्ट एवर ग्रेट प्ले लिखा था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. It's said that Shakespeare played the part of Edward Novel in Ben Jonson's play Every Man in His Humour. Jonson killed Gabriel Spencer in a duel and he was tried for murder. He spent only a few weeks in prison, released later on. Jonson badly quarreled with Inigo Jones, who was his stage designer. कहा यह भी जाता है कि जो बेन जॉनसन है उनके रिलेशन जॉन मार्टसन और थॉमस डेकर के साथ भी कुछ ठीक नहीं थे। बेन जॉनसन ने फाइनली मास्क लिखना स्टार्ट किया था किंग जेम्स वन के लिए। मास्क बेसिकली वो प्राइवेट परफॉर्मेंसेस के लिए लिखते थे, कोर्टी परफॉर्मेंसेस के लिए लिखते थे, एरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए या स्मॉल गैदरिंग्स के लिए ये मास्क जो है बेन जॉनसन लिखा करते थे। और कहा यह भी जाता है ये जो ट्रेंड है मास्क लिखने का ये बेसिकली बेन जॉनसन ने ही स्टार्ट किया था। अब क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे वर्क्स मास्क जो है वो इन्होंने लिखे थे तो इस वजह से जो जेम्स वन है उन्होंने इन्हें अपनी पेट्रनेज भी दी थी। It's said after the success of Every Man in His Humour, the same theatrical company acted Jonson's Every Man Out of His Humour in 1599. और ये जो play है इनका Every Man Out of His Humour, it is considered one of the longest play ever written for Elizabethan public theatre. An interesting fact about Ben Jonson is that he was Protestant England's first unofficial poet laureate. तो चलिए फ्रेंड्स ये तो हो गई इनकी पर्सनल लाइफ। अब चलते हैं इनकी वर्क्स की ओर। इनकी कुछ एक मेजर प्लेज हैं जो बेसिकली इनकी कॉमेडीज थी। वो थी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर रिटन इन 1598, वॉल्पने or the Fox written in 1605, Epiphany or the Silent Woman written in 1609, The Alchemist written in 1610 and Bartholomew Fair written in 1614. फ्रेंड्स 1605 में बेन जॉनसन ने जॉन मार्टसन और जॉर्ज चैपमैन के साथ मिलके एक सेटरिकल प्ले, एक कॉमिक प्ले ईस्टवर्ड हो लिखा था। लेकिन ये जो प्ले है इसका कंटेंट जो है जेम्स वन को कुछ पसंद नहीं आया था और उनको ये वर्क काफ़ी ऑफेंसिव लगा था और इस वजह से इन तीनों ऑथर्स को जो है इम्प्रिजन किया गया था। It's also said that the concept of comedy of humors was popularized by Ben Jonson himself. हालांकि ये जो थियोरी है ये बेसिकली एरिस्टोफेनीज ने दी थी लेकिन इसको पॉपुलराइज करने वाले शख्स बेन जॉनसन खुद थे। इस थियोरी के हिसाब से कहा जाता है ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 bodily fluids: black bile, yellow bile, phlegm and blood, which formed the basis of early system of medicine. Each of these 4 fluids were associated with particular characteristic: sanguine, choler, phlegm and melancholy.
Some early comedies written by Ben Jonson are Every Man Out of His Humor, Cynthia's Revels written in 1600, The Poetaster written in 1601। लेकिन ये जो वर्क है द पोइटेस्टर, इसमें कहा कहते हैं कि उन्होंने अटैक किया था थॉमस डेकर और जॉन मार्सन को, जो उस टाइम के प्रोमिनेंट राइटर्स थे। कुछ एक ट्रेजेडी जो बेन जॉनसन ने लिखी थी, दे वर सेजनस हिज फॉल इन 1603, कैटलिन हिज कॉन्स्पिरेसी रिटन इन 1611। बेन जॉनसन की कुछ एक कॉमेडी जैसे कि वॉल्पोनी और द फॉक्स 1600, द अल्केमिस्ट रिटन इन 1610, Epiphany or the Silent Women written in 1609, Bartholomew Fair written in 1614. So these were all his most popular and esteemed plays of the time. वॉल्पोने और द फॉक्स रिटन इन 1605, ये बेन जॉनसन की सबसे पहली कॉमेडी थी। ये एक बीस्ट फेबल थी वेयर मेन कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू सम एनिमल, प्राइमरीली टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल नेचर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले। हम देखते हैं कि 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, वोल्टेयर, कॉर्बेशो एंड कॉर्विनो। वोल्टेयर, कॉर्बेशो एंड कॉर्विनो जो कि यहाँ पे मेंशन है, ये 3 एनिमल्स को जो है रिलेट करते हैं, जैसे कि वल्चर, रेवन और क्रो। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस प्ले ओपन्स एट द हाउस ऑफ वॉल्पोने, अ वेनेशियन नोबलमैन। ही एंड हिज सर्वेंट मॉस्का, इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैरासाइट, एंटर्स द श्राइन वेयर वॉल्पोने कीप्स हिज गोल्ड। वॉल्पोने एक बहुत ही डिसऑनेस्ट बंदा है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है, जो उसने अनफेयर डिसऑनेस्ट मीन से इकट्ठी की है। ही इज़ अ कॉन आर्टिस्ट, ही लाइक्स टू यूज़ हिज मनी एक्स्ट्रावेगेंटली। इस प्ले में हम देखते हैं वोल्पोने इज़ रिच बट चाइल्डलेस, ही इज़ बिलीव्ड टू बी वेरी इल। वो प्रिटेंड करता है कि वो बस मरने ही वाला है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो ये जो 3 बंदे हैं, ये कहीं ना कहीं उम्मीद लगाते हैं कि ये उसको अच्छे सारे गिफ्ट्स दे के, बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे के उसको मोटिवेट कहीं ना कहीं करेंगे कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी का लीगल एयर है इन लोगों को चुनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जो वॉल्पोने है वो प्रिटेंड कर रहा होता है वो बहुत बीमार है और वो मरने वाला है, और उसका मेन मोटिव होता है इन लोगों से भी वेल्थ उनकी छीनने का। सो ये जो प्ले है पूरा, ये इसी स्टोरी पे बेस्ड है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमेडी जो बेन जॉनसन ने लिखी थी, दैट इज एपिफेनी और द साइलेंट वुमन। इट वॉज रिटन इन 1609। द प्ले इज अबाउट अ मैन नेम्ड डॉफिन who creates a scheme to get his inheritance from his uncle Morose. The plan involves setting Morose up to marry Epiphany, a boy disguised as a woman, though none of the other characters know this until the final scene of the play. Third important work written by Ben Jonson is Bartholomew Fair. It was written in 1640. ये एक 16th century का, as we know, English play है. It's a comedy in 5 acts. The play deals with the social reality and changing political conditions in England, an extremely adventurous play that provides an insight of several characters and their multiple stories. The setting of Bartholomew Fair is very rich, and as it attracted everyone in London, from members of the House of Lords to prostitutes. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बेन जॉनसन का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी लोगों पे रहा था। तो ऐसे में एक ग्रुप स्टार्ट हुआ जिन्होंने अपना नाम रखा था ट्राइब्स ऑफ बेन, या फिर सन्स ऑफ बेन करके भी एक ग्रुप हुआ था। ये जो ट्राइब ऑफ बेन है, ये बेसिकली बेन जॉनसन के फॉलोवर्स थे। ये उसकी फ़िलॉसफ़ी और उसकी लिटरेरी स्टाइल को फ़ॉलो करते थे। सम ऑफ द कैवलियर पोइट्स हु एडमायर्ड एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉनसन पोइट्री। ये इस ग्रुप में बेसिकली कैवलियर पोइट्स थे, जो किंग चार्ल्स वन के टाइम पे जो पोइट्स लिखते थे उन्हें कैवलियर पोइट्स कहते थे। और ये जो पोइट स्पेशली जो इसमें मेंशन है वो है रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लावलेस, सर जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरिल। बेन जॉनसन की डेथ हुई थी 1637 में। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबी। और जो इनका एपिटैफ जो इनकी जो जहाँ पे ये बरी हुए हैं, वहाँ पे जो इनके जो वो जो लाइंस लिखी गई हैं इनके एपिटैफ पे, दैट इज़ ओ रेयर बेन जॉनसन। So that was all from my side. Thank you very much. Please subscribe to my channel. Have a great day.